Hello students. So in the last lecture we have discussed regarding the spectrum, hydrogen atom spectrum. Okay, and we have given an equation. Okay, to calculate the wave number of lines obtained in the hydrogen atom spectrum, and we have discussed the 5 series of the hydrogen atom spectrum. Okay, what are those series? Okay, so Lehman, Markov, Paschen, Brackett, and P-Fund series. So these are the 5 different series. Okay, which gives the line spectra in the different region of electromagnetic spectrum, from the ultraviolet, visible, then 3 of them, that is Paschen, Brackett, and P-Fund. They are obtained in the infrared region. Okay, so by using that formula, what formula we have discussed? We have discussed the formula to determine the wave number, and that is mu bar is equal to r into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So this formula we have discussed in the last lecture. And by using this formula, now we are going to determine the wave number, okay, wave number of the lines obtained in the hydrogen spectrum. Okay, so what it is? Here I have written a numerical. Okay, what the numerical asks? Calculate the frequency and wavelength of radiation in nanometer. So what they are asking, to calculate the radiation in the wavelength and frequency in the nanometer emitted when an electron jumps from third orbit to ground state. To what? Ground state. So what we have discussed already. So we have discussed like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. And in the level series, what we have discussed, we are discussed like this. So the electrons are jumps from higher level energy level to lower energy level like this. We have drawn the diagram. Okay. So in this numerical also, what they are asking? They are asking to calculate wavelength and frequency for radiations when an electron jumps from this third energy level to ground state. So this first is called as ground state. I have told you that this is called as a ground state. Okay. So if from this third energy level to ground state, the electron jumps from this, okay, what will happen? This much amount of energy is going to be released in the form of radiation, and they wanted to calculate the frequency and wavelength of this radiation which is emitted when electron jumps from higher energy level to lower energy level, and we have a formula to calculate that wave number for the particular radiation. Okay, what are the things they have given? Okay, so what is given in this numerical or in sum? R is given, and that is 109,677 centimeter equals this is given. Okay, then the next n1 is given. N1 is what? N1 is 1. This ground state. Okay, and n2 is also given. What it is? Third orbit. So they have given the value of n1. They have given the value of n2. What is n2? This is ground state. Why we are taking n1? Because n1 is ground state. n1 is called as a ground state, where the energy of the electron is not going to change at all. It remains as it is. Okay. So whenever it absorbs the energy, it will jump from this lower energy to higher energy level, and after this excess state, once again it comes down to that particular ground state or stable state. Okay, so they have given in the formula
they have given the value of R, they have given the value of N1, they have given the value of N2. So we will put the values to calculate wave number. What it is 109,677 into 1 upon N1 square, that is 1 square, 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square, 1 upon 3 square. So nu bar is equal to 109,677 into 1. So 1, I will directly write like this, minus 1 upon 9. Correct? 3 3 is 9. So nu bar is equal to 109,677 is equal to into 9 minus 1 divided by 9. Correct? A simple mathematics. And what we can write, nu bar is equal to 109,677 into 8 by 9 centimeter inverse. If we calculate this, okay, if we solve this, what we will get? We will get the number as 97490. 97490.7 centimeter inverse. So this is what? This is wave number for radiation when electron jumps from third energy to ground state. So we have the wave number. Now what we want? We want wavelength and frequency. Now we know that. What we know? 1 lambda is equal to, mu bar is equal to 1 upon lambda. This equation we know that. Okay, or we can say that just interchange the values, interchange it, and we can say that lambda is equal to mu bar. So if we put the value of mu bar, that is wave number, in this equation, so 1 upon 97490.7 centimeter. So it is inverse, or it becomes centimeter, right? So if we solve this, what we will get? We will get a value as 103 into 10 raised to 7 centimeter into 10 raised to minus 7 centimeter. So 1 upon 97490. If we solve this, we will get 103 into 10 raised to minus 7 centimeter, or we can write it as, how we can write, 103 into 10 raised to minus 9 meter. Correct? 10 raised to minus 9 meter, or we can write it as 103 nanometer. So this is our what? Wavelength. This is our what? Lambda. Wavelength. Now we have the value for wavelength. We can calculate for frequency. So we know that equation, that is nu is equal to C upon lambda. Nu is equal to C upon lambda. And what is C? C is nothing but velocity of light, and it has a value of 3 into 10 raised to 8 meter per second. Meter per second. And we have the value for wavelength, that is in terms of meter, that is 103 into 10 raised to minus 9
meter. So meter get cancelled. Meter get cancelled. And if you solve for that, okay, what we will get? You will get a value of 2.19 into 10 raised to 15. 10 raised to 15 per centimeter. Okay, per centimeter. into 10 raised to 15 per centimeter, or we can write just 2.19 into 10 raised to 15 hertz. Okay, so this is what we have calculated a frequency and wavelength for a radiation. Okay, when an electron jump from third energy level to ground state. Third energy level to ground state. So you have to remember the type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now I will explain it in Hindi. Okay, so you can understand this thing. देखो क्या चीज है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सिंपल सा एक सम हमने सॉल्व करने के लिए लिया है। तो हमने जो स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, और उसमें हमने डिफरेंट सीरीज बताई है। ओके, जैसे कि लेमन सीरीज बताई है, बाल्मर सीरीज बताई है, उसके बाद में पास्टन सीरीज बताई है, ब्रैकेट सीरीज बताई है, और कीफर्ड करके सीरीज बताई है। तो वो जो सीरीज ऑफ लाइन बताई है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के, और उस सीरीज ऑफ लाइन की हर एक लाइन की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए एक हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। ओके, जिस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं कि हर एक लाइन के हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में जितने भी सारे लाइंस मिल रहे हैं, वो उस हर एक लाइन की क्या लिख सकते हैं कि हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को हम रिडबर्ग इक्वेशन करके भी बोलते हैं। और उस रिडबर्ग इक्वेशन क्या बताया था? तो रिडबर्ग ने इक्वेशन बताया था कि न्यू बार दैट इज वेव नंबर is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where the values of n1 and n2 are changes according to the series. Okay, so Paschen series have a different value, Lehman series has a different values. Okay, then Balmer series has a different value for n1 and n2. Okay, and that we have discussed in the last lecture. So from where we have to consider what is n1, which series what is L1 and what is L2, we have already discussed. So by using this formula, okay, ये formula इसको हम यूज करके क्या करने वाले हैं कि वेव नंबर को पहले कैलकुलेट करेंगे, और वेव नंबर से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या बोले हम लोग कि 1 अपॉन वेव नंबर बोले, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू बार, ये हमें पता है, ये इक्वेशन में होता है। तो अगर मुझे न्यू बार की वैल्यू मिलती है तो मैं लैम्डा डिटरमाइन कर सकता हूं, मुझे लैम्डा मिलता है तो मैं फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकता हूं, जिसके लिए फार्मूला है न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ओके, जिधर c क्या है आपके लाइट का वेलोसिटी है, और लैम्डा क्या है जो आप कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू। तो उसी फार्मूला को यूज करके जो रिडबर्ग का इक्वेशन था, उस रिडबर्ग के इक्वेशन को यूज करके हम चीज क्या करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं जो अभी यूजफुल होने वाली है टू डिटरमाइन द वेव नंबर। तो देखो r दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया है रिडबर्ग कांस्टेंट करके 10967 सेंटीमीटर, इस r की वैल्यू दी हुई है। ओके, उसके बाद में एक सेंटेंस में बताया जा रहा है इस न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इधर से थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट। ओके, तो थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट को वो आ रहा है, तो अभी जो ग्राउंड स्टेट है वो आपकी n1 होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो क्या होगी, ये क्या होगी आपकी n1 हो जाएगी। तो n1 इज इक्वल टू क्या है, ग्राउंड स्टेट मतलब 1 लोअर एनर्जी, तो ये क्या होगी 1 होगी, और किधर से आ रहा है वो थर्ड एनर्जी लेवल से आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है, तो n2 क्या हो गया 3 हो गया। n2 की वैल्यू कितनी होगी
3 होगी। अभी ये वैल्यूज पूरे हम ऐड करके हमने जब सॉल्व किया पूरा, तो सॉल्व करने के बाद हमें वेव नंबर क्या मिला है, एक वैल्यू मिल गई है वेव नंबर की। क्या मिली थी वो, म्यू बार इज इक्वल टू कितना मिला, 96490.7 सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी वैल्यू हमें मिली किसकी, वेव नंबर की, जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अभी वेव नंबर अगर म्यू बार पता चल गया है तो उससे लैम्बडा डिटरमाइन किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, किया जा सकता है, कर सकते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, 1/म्यू बार है। ये म्यू बार की वैल्यू है इधर डाल दी, तो हमें क्या मिला, एक वैल्यू मिल गई सेंटीमीटर में किसकी, लैम्बडा की। कितनी है वो, 103 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। लेकिन डिटरमाइन करने के लिए किसमें डिटरमाइन करने के लिए बोला है कि डिटरमाइन क्या कर रहे हैं हम, वेवलेंथ जो है वो हमें नैनोमीटर में चाहिए। तो नैनोमीटर में चाहिए तो इसको मैं पहले क्या करता हूं, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करके लेता हूं। तो लैम्बडा में क्या लिखूंगा, 103 × 10⁻⁹ मीटर। और हमें एक चीज रिलेशन पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁹ मीटर बोलते हैं, 10⁻⁹ मीटर बोलते हैं। तो वही जो रिलेशन है वही यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि 10⁻⁹ आया है, मतलब कितना हो गया, वो उतना ही नैनोमीटर हो गया। 103 क्या हो गया आपका, नैनोमीटर में कन्वर्ट। तो ये हो गया हमारे क्या, वेवलेंथ हो गई। देखो वेव नंबर कैलकुलेट कर दिया, वेवलेंथ कैलकुलेट कर दी, लैम्बडा कैलकुलेट कर दिया। अभी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है कि न्यू इज इक्वल टू c/λ। ये मेरा इक्वेशन है, मुझे पता है कि इसको हम यूज करेंगे। c की तो वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁻⁸, ये इसको जैसा है वैसा पुट करेंगे मीटर पर सेकंड में। उसके बाद में लैम्बडा की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है 103 × 10⁻⁹ मीटर। अभी इधर मैं मीटर यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी है वो मीटर में है, इसलिए सिर्फ मीटर में यूज किया। मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, 2.91 × 10⁻⁵ पर सेकंड। ये जो पर सेकंड जैसा है वैसा ही इधर हो गया। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू 2.91 × 10⁻⁵ हर्ट्ज लिख सकता हूं, या फिर साइकिल पर सेकंड लिख सकता हूं। ठीक, तो ऐसा हमें क्या करने का है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हैं, या फिर हमें वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की है। किसकी, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिल रहे हैं, जो सीरीज ऑफ लाइंस मिल रहे हैं, उन सीरीज ऑफ लाइन की सॉल्व करने की है। ओके, तो ये एक आपको मैं क्या एग्जांपल के तौर पे ये सॉल्व करके मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करने का है। ठीक है, अभी बाकी का जो है जितने भी सारे आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड मिलेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, कुछ नहीं मिलता है, कुछ क्या होता है कि कुछ आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो मैं हूँ उसके लिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा व्यू देखो प्रॉपर है, मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। नीचे की वैल्यूज कुछ दिख नहीं रहे थे, वो अभी दिखाई दे रहे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे इसी टॉपिक में। ओके, so the next point from this topic is Bohr's model of atom. Okay, so we know that Rutherford model. Okay, Rutherford atomic model. In Rutherford atomic model, what Rutherford has told us that there is a nucleus at the center. There is a nucleus at the center, and it has a positive charge. It has a positive charge. So there is a nucleus at the center, and it has a positive charge, and the electrons are revolving around the nucleus, in the circular path. Like how is this? This is like a planetary system
in which the all planets are revolving around the sun. Like that, electrons are revolving around the nucleus. This is the statement of what the Rutherford. Okay. Now we are going to continue the concept, the basic concept of Rutherford model in this model also, in the new model also. But Rutherford model, it fails. Why it fails? Because it fails to explain the things, some things like the Maxwell has told us that whenever there is a charged particle is in under acceleration, or is it under movement, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है या मूवमेंट में होता है तो क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जब भी कभी मोशन में होता है, जब भी कभी मूवमेंट में होता है, तो क्या करता है, वो रेडिएशन देता है। वो क्या करता है कि ऑलवेज इट लूजेस इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर ये कंसेप्ट हम इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज एक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अभी उसके ऊपर ये क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, एक्सेलरेशन में आ गया, तो क्या होगा ना कि वो रेडिएशन रिलीज करेगा, और रेडिएशन रिलीज करने से क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, उस न्यूक्लियस के ऊपर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जिधर है उधर का उधर है। तो ये जो चीजें थी, उसके बाद में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो तो ठीक तरह से बताए थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस किया जा रहा है, या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस किया जा रहा है। लेकिन ये मॉडल जो है वो कुछ थ्योरीज, कुछ कंसेप्ट जो है, जैसे कि स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, या फिर हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रा जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, ये जो चीजें थी, ये पूरी चीजें ये रुदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। और इसके लिए हमने नेल्स बोर ने, नेल्स बोर का हम स्टडी कर रहे थे, तो नेल्स बोर नाम का एक साइंटिस्ट था, उस नेल्स बोर ने हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी करते हुए उसने क्या बताया कि एक मॉडल प्रपोज किया, किसका, एटम का। और उस मॉडल प्रपोज करते टाइम जब भी उसने उस मॉडल को प्रपोज किया, जब भी उसने वो मॉडल बताया एटम का, तो उस मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, या फिर उस मॉडल को उसने वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, ऐसा ही है ये जस्टिफिकेशन देने के लिए उसने कुछ पॉइंट्स बताए, जिसको हम बोर्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। और उस बोर एटॉमिक थ्योरी के या फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम के कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ अजम्पशंस है, जिसके ऊपर ये थ्योरी, ये मॉडल क्या हुआ है, प्लेस किया गया है। तो ये पोस्टुलेट्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, बोर्स क्या बोल रहा है कि एटम कंसिस्ट अ स्मॉल, एटम कंसिस्ट अ वेरी स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये तो कंसेप्ट किधर से आई, रुदरफोर्ड की जो कंसेप्ट थी वो किधर आ गई है, कंटिन्यू हो गई है इस मॉडल में, कि एटम में एक बहुत छोटा सा लेकिन हेवी, बहुत छोटा सा लेकिन क्या है, हेवी है, जिसका वेट ज्यादा है, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जो सेंटर में है, जो क्या है, सेंटर में है, और उसको नाम क्या दिया गया है, न्यूक्लियस के नाम दिया। तो ये नाम तो न्यूक्लियस रुदरफोर्ड ने दिया था, उसको ही नेल्स बोर ने कंटिन्यू किया है। उसके आगे जाके बोर क्या बताता है, एंड और क्या है एटम में, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
in a circular path called as orbit. अभी जो सर्कुलर पाथ रुदरफोर्ड ने बताया था उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बता दिया है नील्स बोर। तो ये बेसिक फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो बेसिक रुदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर ये है कि एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज हेवी वेरी स्मॉल थिंग है जिसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियस करके बोल रहे हो। इसको क्या बोल रहे हैं लोग, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है कि जिस सर्कुलर पाथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। जिस सर्कुलर पाथ में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। और उस सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया है, ऑर्बिट करके नाम दिया, ऑर्बिट करके नाम दिया। ओके, आगे जाके नील्स बोर क्या बताता है, इन द सेकंड पोस्टुलेट what he is telling, electron revolve in the orbit, okay, but electron revolves only in those orbits. तो पॉसिबल बहुत सारे हैं, सरफेस से लेके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेंटर पे पॉइंट रख के उसके अराउंड अगर आपको, मैंने बोला कि आप सर्कल ड्रॉ करो, एक सेंटर पॉइंट रख के, इधर एक पॉइंट है, इसके अराउंड आप जो भी कुछ मन में आए वो रेडियस कंसीडर करके इसके अराउंड आप सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला, तो आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर सर्कुलर पाथ, ये सभी सर्कुलर पाथ ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दोज सर्कुलर पाथ, इन दोज ऑर्बिट फॉर विच, कौन से, कुछ ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस कौन से ऑर्बिट में, फॉर विच द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज फिक्स। जिस ऑर्बिट के लिए, जिस सर्कुलर पाथ के लिए एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है, या फिर उसी सर्कुलर पाथ में क्या होता है, वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, और जिसके लिए क्या है, एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। एंड देयरफॉर द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज, देयरफॉर द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज stationary energy levels, stationary energy levels. Therefore orbits are called as stationary energy levels, or we can say it as a stationary states. Why stationary energy level or stationary states? Because whenever electron present in those particular orbits, that time the energy of electron is fixed, or the energy of that particular orbit is fixed. Okay, it does not mean that what we are saying that particular stationary orbit, stationary state or stationary energy level, it does not mean that electron is stationary. Electron is moving, but it is moving in the stationary energy level for which the energy is not going to change. Is not going to change. It has a fixed value. It has a fixed value. So the different energy levels, there are number of energy levels for which we have a fixed value of energy. Fixed value of energy, and that's why these different energy levels are numbered as, they are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. Or they are designated, okay, they are labeled as K, L, M, N, O, P, starting from the orbit closest to nucleus, closest to nucleus. नंबरिंग किधर से करना है, जो नंबरिंग स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, या फिर जो लेबलिंग स्टार्ट होगा K, L, M, N, वो ये किधर से करने का है,
बाहर से अंदर आने का है क्या? नहीं, जो फर्स्ट क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है उसको फर्स्ट नंबर दीजिए, जो न्यूक्लियस को क्या है क्लोज है उसको क्या दे दो? फर्स्ट नंबर दे दो, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट. सो वी हैव टू नंबर एज K, L, M, N, like this. Okay, then in the third point, what he is saying, the energy of a different energy levels, the energy of a different energy levels. So the energy of this first, second, third, fourth energy levels, stationary states, stationary orbits or stationary energy levels, we can calculate the energy for each and every energy state or stationary state. Okay, so the energy of different energy levels in case of hydrogen atom is given by formula. So hydrogen atom का स्पेक्ट्रम स्टडी करते करते इसने ये मॉडल बताया था. तो उसने क्या किया है, हाइड्रोजन एटम के लिए जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, जो डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स है, उसके लिए एक फार्मूला दिया है जिसकी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो. और वो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला इज En. Okay, En is equal to minus 2 pi square m e raised to 4 by n square into x square. क्या है फॉर्मूला? En is equal to minus 2 pi square m e raised to 4 divided by n square x square, where what are the quantities are? The quantities are, okay, so different quantities हमने इधर लिए. वो different quantities क्या है देखो, in the formula in this formula what is m? M is mass of electron. What is E? E is charge on electron. E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. What is N? N is cell number. Okay, और number of orbit का क्या वो नंबर है. What is H? H is Planck's constant. अगर मुझे क्या क्या पता है देखो, En में कैलकुलेट कर रहा हूं, n का जो रोल है, सॉरी नंबर है, ये सब जो मैंने फिक्स नहीं लिया अभी, तो मुझे बाकी की चीजें पता है. मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मुझे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है. अगर मैं ये सभी क्वांटिटी इस फार्मूला में पुट करता हूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, मुझे एक En का डिफरेंट मिलेगा, एक डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा. व्हाट इज दैट? -1312 divided by n square kilojoule per mole. So we can calculate the energy of different energy states, different stationary energy state by using the formula En is equal to -1312 divided by n square kilojoule per mole. So if n is equal to 1, this is equal to 1. So what we are getting? We are getting -1312 kilojoule for first energy level or first energy state. If n is equal to 2, so 2 square, that is 4. So what it is? -1312 divided by 4, इसको इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? सेकेंड एनर्जी स्टेट जो है उसकी वैल्यू रहेगी इन केस ऑफ किलोजूल पर मोल. कैसे रहेगी वो? किलोजूल पर मोल में रहेगी. ठीक है. So these are the first three assumptions or postulates of Bohr's theory. Okay.
The remaining postulates we will discuss in the next lecture. Thank you. Hope you are understanding. Thank you.